Today we'll start this new chapter, mixture. This is in booklet 10. And chapter number is what? 20. Switch on your cameras, everyone. Ashna. Oh, sir, I'm just changing my name and joining again. Okay. In mixture, what happens is there will be two or more than two types of materials. Or liquids also. They will be mixed in some proportion. Yeah. Kya hua? So these liquids or materials will be mixed in some given proportion, and they'll ask you what is the new proportion type of thing. So as such, there is no fixed formula in these, right? We used to have common sense only and use that. For example, you have 2 kg of one type of rice and says price is 50 rupees per kg. And then you have 5 kg of second type of rice and its pricing is 30 rupees per kg, right? And then these are mixed. Camera on kar lo. Suppose these two types of rice are mixed, and the question is, what is the price of the mixture? Try karo. We have 2 kg of type 1 rice. Its price has been given to us per kg. You have 5 kg of type 2 rice. Its price has also been given to us. They are mixed. And then the question would be that find the cost of the mixture per kg. That is, a mixture will cost you how much rupees for a kg? Anya, Navya, switch on your cameras. जरा सोचो क्या करना चाहिए हमें. हमें कॉस्ट पर केजी निकालना है. Because if you mix 2 kg of this and 5 kg of this, the total amount of rice कितना हो जाएगा? 7 kg हो जाएगा, है ना? So we can find the total cost also. क्या हुआ नव्या, तुम आज आई नहीं ऑफलाइन? मम्मी ने बोला वॉर चल रहा है, घर में बैठो. नहीं सर, वो स्कूल से ले आने में लेट हो गया था। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी. So if you mix these two types of rice, you can find total cost of the 7 kg rice. टोटल कॉस्ट को टोटल मास से डिवाइड कर दो तो पर केजी कॉस्ट आ जाएगा. ट्राई करो. हम्म. टोटल कॉस्ट कितना होगा? 2 kg राइस का कॉस्ट कितना है? 2 kg राइस विल कॉस्ट यू 2 इंटू 50, दैट इज 100 रुपीज, है ना? एंड 5 kg ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ राइस which is 30 rupees a kg will cost you 150. So what is the total cost? Total cost will be 250 rupees. But what is the total weight of the rice? 2 plus 5, that is 3 kg. So 3 kg of mixture
cost you how much? 250 rupees. Sorry, 7 kg. 7 kg of mixture cost you 250 rupees. So per kg, what is the cost? So 1 kg of mixture will cost you 250 divided by 7. कितना आ रहा है ये? 35.7 rupees per kg. Remember that whenever you answer these kind of questions, common sensically, whatever your answer would be, it would be less than the maximum and more than the minimum. If you look at these two price, it is 50 and 30, है ना? तो जो मिक्सचर का कॉस्ट आएगा वो 50 से हमेशा छोटा आएगा और 30 से हमेशा ज्यादा आएगा. सपोज चार ऑप्शन थे, एक ऑप्शन 30 से छोटा था, दूसरा ऑप्शन 50 से बड़ा था, इसका मतलब वो दो आंसर पॉसिबल नहीं है. यू कैन रूल आउट देम एज इट इज. सपोज वन इज 55 रुपीज पर के जी, second option is 28 rupees per kg, third option is 30.57, and D is none of these, है ना? So these two will be ruled out. The average cost will be always more than the minimum and always less than the maximum. Whenever you find the cost like this, it will be less than maximum. जो भी आंसर आएगा 50 से बड़ा आएगा और 30 से ज्यादा आएगा. Fine. So I'll write some questions on board and then you answer. एक बार ये लिख लो. हो गया? लिख लिया? आ जाओ. A vessel is filled with some liquid and basically mixture, three parts of which are water and five parts are syrup. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water
सो दैट द मिक्सचर बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। मतलब जो हमें सिरप दिया हुआ है, उस वो मिक्सचर है, मतलब जो मिक्सचर है उसमें वाटर भी मिक्सड है और सिरप भी मिक्सड है, उसका तुम्हें प्रोपोर्शन दे रखा है इनिशियल। तो अब उसमें से कुछ पार्ट हम वापस निकालेंगे बाहर, और जितना पार्ट ऑफ द मिक्सचर हम बाहर निकालेंगे उसकी जगह पानी डाल देंगे। सो कितना वाटर यू शुड मिक्स सो दैट इट इज 50% वाटर। हम्म 1/7। अभी देखते हैं, चेक कर लेना। हम्म ये वाला चैप्टर इज चैप्टर 20, बट लिख लो मिक्सचर। सो टेक योर ओन टाइम, आंसर इट करेक्टली। In the mixture, we have water and syrup. Name of the chapter लिखो mixture। यहाँ पे you sit here, यहाँ आ जाओ। चैप्टर का नाम लिखो। मिक्सचर चेक कर लिया तुमने? पक्का? Three parts are water one and five parts are syrup. That means what is the proportion? The proportion is 3:5, or else I can say 3x and 5x also, है ना? Because the proportion of water and the syrup in the mixture is 3:5. Three parts water and five parts syrup. So let's take, you have 3x of water volume wise and 5x of syrup. अब मान लो you take out y amount of liquid, ठीक है? We drawn off y amount of liquid, उसमें y amount of liquid हमने निकाल दिया बाहर। So when you take out y amount of liquid, उस y amount of liquid में कितना water होगा, कितना syrup होगा? शिवांश, बताओ। If I take out y amount of y liter of the liquid और द मिक्सचर, उसमें कितना प्रोपोर्शन वाटर का होगा, कितना प्रोपोर्शन सिरप का होगा? बिकॉज सारा सारा तो होगा नहीं वो। अगर सपोज पानी में दूध मिला हुआ है एंड यू टेक आउट 1 लीटर ऑफ दैट मिक्सचर, तो उस 1 लीटर में कितना वाटर है कितना मिल्क है वो कैसे पता करोगे? दैट विल बी फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोपोर्शन गिवन टू यू। द ओरिजिनल प्रोपोर्शन इज 3:5। तो अगर सपोज आई टेक आउट वाई लीटर ऑफ द मिक्सचर, उस मिक्सचर में कितना पानी होगा? दैट मिक्सचर विल कंटेन y into 3 divided by 3 plus 5। इतना उसमें वाटर होगा, एंड हाउ मच वुड बी द सिरप? इट वुड बी y into 5 divided by 3 plus 5। This is okay with everyone? We are taking out y liter of the mixture. That y liter of the mixture would contain so much of water and so much of syrup। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज प्रोपोर्शन में दे रखा है पानी का और सिरप का। कैसे? हाँ। हम्म नहीं, क्या किया तुमने? 3/7 वाटर कैसे हो गया? तो 3/7 तो उसमें वॉल्यूम कहाँ से पता लगे तुमने? और कितना अमाउंट तुमने निकाला वो कहाँ लिया है? यू ड्रॉन ऑफ सम लिक्विड ऑल्सो ना। 1/7 क्यों निकालोगे? उसको वाटर से भी रिप्लेस कर रहे हो। जितना हमने मिक्सचर निकाला है उतना पानी भी डाला है। अभी देखते हैं। हाँ, उसका रेशियो चेंज होगा, फिर को पानी मिक्स कर रहे हो ना। यू आर टेकिंग आउट द मिक्सचर, जितना मिक्सचर निकाला 2 लीटर आधा लीटर उतना ही पानी डाल दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया ना। तो नाउ टेल मी, पहले वाटर कितना था? 3x।
इतना हमने वाटर निकाल दिया, तो हाउ मच वाटर इज लेफ्ट? 3x minus 3y/8. How much syrup is left, pure syrup? Initially it was 5x. Now the amount left of pure syrup is this. Is that fine? मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ. सपोज यू हैव 2 लीटर ऑफ मिक्सचर, उसमें सपोज 1 लीटर मिल्क है और 1 लीटर पानी है. अगर इसमें से तुम आधा लीटर मिक्सचर निकाल लोगे, ठीक है, और आधा लीटर पानी डाल दोगे, तो वो तो चेंज हो जाएगा ना प्रोपोर्शन. वही यहाँ पर हो रहा है. इनिशियली वी हैव 3x लीटर ऑफ वाटर एंड 5x लीटर ऑफ सिरप. उसमें से हमने कितना निकाला? y लीटर ऑफ द मिक्सचर निकाल लिया. इन द y लीटर ऑफ द मिक्सचर वी हैव सो मच ऑफ वाटर, 3 डिवाइड बाय द प्रोपोर्शन, 5 डिवाइड बाय द प्रोपोर्शन का सम. अब हमने क्या किया उसके बाद? इतना वी हैव वाटर, इतना वी हैव सिरप, प्योर सिरप, लेकिन वी आर मिक्सिंग दिस विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर. जितना हमने मिक्सचर ड्रॉन ऑफ किया था उतना ही उसमें पानी मिक्स कर दिया. तो अब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इतना हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ सिरप इतना हो गया. नाउ व्हाट इज द न्यू प्रोपोर्शन? दिस न्यू प्रोपोर्शन इज 1:1. मतलब हाफ वाटर एंड हाफ सिरप. इन दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा. नहीं, वो लग रहा है तुम्हें ठीक नहीं ना? ये तो प्रोपोर्शन है, वॉल्यूम थोड़ी है ये. प्रोपोर्शन वॉल्यूम में डिफरेंस होता है. If they say that the water and the syrup are in the proportion 3:5, can I say we have 3 liter of water and 5 liter of syrup? No. It could be 6 and 10 also. It could be 15 and 25 also. तो proportion को तुम volume नहीं ले सकते. This is the volume. This is the volume. 3x liter of water and 5x liter of this. Then I draw off y liter of the mixture. तो ये volume है. तो volume और proportion में difference है. दोनों को equate करो, क्या आ रहा है? Because the new proportion is 1:1. So 3x minus 3y/8 plus y is equal to 5x minus 5 by y/8. Y की term you can bring on the right side, जैसे भी करना है. Because जैसे कि they are in the proportion half half, 50-50, मतलब 1:1 हो गया ना न्यू प्रोपोर्शन. या तो ऐसा कर चाहो तो ऐसे कर लो. 3x minus 3y/8 plus y divided by 5x minus 5 by 8 equal to 1:1. The same thing. दो इक्वेशन क्यों होंगी? इट्स नॉट नीडेड. मेरे को सिंप्लीफाई करके बताओ. लेट्स इसका एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है. 90 क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा तो 8x/5 इक्वल टू y बन रहा है सर. 8x. 8x/5 इक्वल टू y. हाँ, ये आ गया ना. बाकी लोग करो, ये आ रहा है नहीं आ रहा है? आशना, तुम्हारा क्या आ रहा है? सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है. 8x = 5 है. अब बताओ, हमें आंसर बताना, हमें y फाइंड करना था, ठीक है. तो y क्या हो गया? y हो गया 8x/5. दैट इज 1/5 ऑफ. व्हाट वाज 8x? बताना जरा मुझे. 8x क्या है? 8x इज 3x plus 5x, द इनिशियल वॉल्यूम. तो ये इनिशियल वॉल्यूम का कितना है? इनिशियल वॉल्यूम इज 8x. तो इनिशियल वॉल्यूम का 1/5 तुमने निकाला है. आंसर इज 1/5. 3x plus 8x था ना. ये नहीं आ रहा, 8x नहीं आ रहा. कहाँ गलती कर रही हो तुम, चेक करो. हाँ. और तुम्हारा, तुम कहना चाह रही हो कि 90 गुमराह कर रही है हमें. चलो देखते हैं. सपोज तुमने इसको 8 से मल्टीप्लाई, नहीं देखते हैं, 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये आ रहा है. तो दिस इज एक्स वाली टर्म, तो ये मैंने राइट साइड में लिख दी.
कितना हो गया 6x। और फिर बाकी कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, फिर आ तो गया आंसर। हाँ तो ये आ गया ना, दिस, दैट इज y इज बेसिकली 8x/5। व्हाट इज 8x? 8x इज द इनिशियल वॉल्यूम, दोनों को ऐड करके 8x ही तो आ रहा है। तो टोटल इनिशियल वॉल्यूम का 1/5 इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मिक्सचर यू आर ड्राइंग ऑफ। ये इसका आंसर था। वापस से देख लो, इनिशियल प्रोपोर्शन गिवन टू यू वाज 3:5, तो मैंने वॉल्यूम में ले लिया, लीटर मान लो, जो भी कहना चाहते हो। 3x इसका वॉल्यूम है, 5x का वॉल्यूम है। उसके बाद हमने y लीटर द मिक्सचर बाहर निकाला। उस y लीटर में सारा का सारा प्योर लिक्विड नहीं है, प्योर सिरप नहीं है, सारा का सारा प्योर वाटर नहीं है। कितना प्योर वाटर है? वाटर इतना है, उसी प्रोपोर्शन में निकालना पड़ेगा ना मुझे, 3/3/5, y × 3/3/5। कितना सिरप है? सिरप हो जाएगा 5/3 + 5। अब द रिमेनिंग मिक्सचर हैज दिस मच ऑफ वाटर, दिस मच ऑफ, इतना हमने वाटर निकाल दिया, इतना सिरप निकाल दिया। पर इनिशियल वॉल्यूम कितना था? पानी का इनिशियल वॉल्यूम इतना था, तो इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया। सिरप प्योर इतना था, उसमें से इसको माइनस कर दिया। बट क्वेश्चन सेज दैट वॉट एवर मिक्सचर यू ड्रॉन ऑफ, उतना ही तुम्हें वाटर मिक्स करना है, उतना ही हमने पानी डाल दिया। तो व्हेन यू मिक्स एक्स्ट्रा वाटर, तो वाटर मैंने ऐड कर दिया। बट ये जो नया प्रोपोर्शन आ रहा है वो क्या है? इट इज 1:1। 1:1 का मतलब दे आर इक्वल इन वॉल्यूम। फिर दोनों को इक्वेट कर दिया। हाँ, यहाँ पे आके तुम्हें लगता है कि दो वेरिएबल आ रहे हैं, वेर एज वी नीड टू फाइंड वन वेरिएबल ओनली, बट ऐसा नहीं है। यहाँ में फ्रैक्शन पूछा है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम इज टेकन आउट। तो टोटल वॉल्यूम का 1/5 हमने निकाला है। इट इज 1/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। लिख लिया शीजा? क्वेश्चन तुमने लिखा था? अब बुकलेट 10 ओपन करो, एंड व्हाट पेज द चैप्टर 20 इज? 162। 162 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करो। बुकलेट 10। मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ क्वेश्चन, बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज अ बुकलेट विद देम। है, यू हैव द बुकलेट? somebody take picture of first 5 question and ग्रुप में डाल दो। नव्या, पहली 5 क्वेश्चन का पिक्चर लेके उसमें डालो। बैठो, चलो, मम्मी बाहर बैठी है, चलो बुलाओ मम्मी को। सर मेरे बुक में 161 से स्टार्ट है, तो 161 का भेजना है, 162 का? नहीं, एग्जाम्पल नहीं भेजना है, एक्सरसाइज देखो। अच्छा, ओके। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 5 डाल दो, पहले 4 ही डाल दो चाहे। 161, पेज 161 खोलो शीजा। ये वाला क्वेश्चन है।
यहाँ से शुरू करो। ये वाला क्वेश्चन लिखा नहीं, ये लिखो पहले, इसको लिख लो जल्दी से। बिना क्वेश्चन के क्या करोगी? Question number one is straightforward. You mixing two varieties of क्या, two varieties of rice, two varieties of pulses. So this is straightforward. They're asking the ratio. So you can take, suppose you mix x kg of the first one and y kg of the second one. That's how you start. Suppose you mix x kg of the first one and y kg of the second, then you find x is to y. ठीक है, कौन सा आंसर हो गया? x बाय y कितना आएगा? 7:3 आएगा। में y पहला लिया है। Suppose you take x kg of the pulse which is costing you rupees 15 per kg, and you take y kg of the pulse which is costing you rupees 20 per kg. So the total cost will be 15 into x, it will be 20 into y. And what about total weight? It would be x plus y kg. So total cost is 15x plus 20y divided by total weight, which is x plus y. So this would be the cost of the new mixture, which has already been given to us, 16.5. The cost of the mixture is given to us, 16.5. Total cost by total weight is the cost of the mixture per kg. So you can cross multiply. Hmm. दिया हुआ इसने। The mixture is costing you 16.5 rupees per kg. Given है ना question में? So it will be 15x plus 20y is equal to 16.5x plus 16.5y. y की टर्म इधर ले लेते हैं, 20y minus 16.5y equals to 16.5x minus 15x. And you get your answer. So this is 3.5y equals to 1.5x. You can remove the decimal. क्या आंसर आएगा? 35 by
15 is equal to x by y. 7:3. आंसर इज सी. इसका आंसर सी आएगा. ठीक है. सी आंसर है ना पहले वाले का. फर्स्ट इंटू सेकेंड वही आएगा. हाँ. तो एक्स बाय वाई आएगा ना. तुमने सही करके भी गलत कर रही हो. 7/3 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई. एक्स बाय वाई तो निकालना था. ठीक है. सी इज आंसर. शीजा ये वाला करो. इतना टाइम तुम लगाओगे लिखने में, कितना कैसे होगा? जल्दी करो. क्वेश्चन 2. सेकंड का. Now remember that in question 2, whenever these kind of questions are there, mixing water, the cost of water will be taken as zero. ठीक है. We know that water cost us 10 or 20 rupees a liter nowadays, but in questions में हमेशा water का cost तुम zero लेके चलोगे. ठीक है. Cost of water you'll take as zero. Mixture. Mixture be half water and half syrup. So until as mentioned, you have to take cost of water per liter as 0 rupees. In what ratio must water be mixed with milk, costing rupees 12 per liter to obtain a mixture worth of rupees 8 per liter? कर लो. Similar question, x and y लेके कर लो. X liter of water, y liter of milk, but price of the water you have to take 0. This is question 1. In what ratio water be mixed with milk? So this is water, this is milk. You can take x liter, you can take y liter. Per liter cost will be 0, 0 rupees per liter, and it's been given to you 12 rupees per liter. जब तक मेंशन नहीं होगा वाटर का कॉस्ट, हम 0 लेके चलेंगे. तो x लीटर वाटर कितना कॉस्ट करेगा हमें? x इंटू 0. And y liter of milk will cost us 12y. Total cost would be this plus this. Whereas total volume कितना हो जाएगा? Total volume would be x plus y liter. So the cost per liter would be 12y divided by x plus y. And this has been given to us. कितना दे रखा है ये? 8. मिक्सचर का कॉस्ट 8 दे रखा है. So this is 8. इसको सॉल्व कर लो फिर. So it would be 3y is equal to 2x plus 2y. So y is equal to 2x. That is x by y कितना आ रहा है? 1/2. x by y is 1/2. क्या आंसर है? 1:2.
क्या था? अच्छे से प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। नहीं वो मत करो, पहले तुम कॉस्ट निकालो, उसका बताता हूँ कैसे करना है। गेन, क्वेश्चन 4 में गेन परसेंट का या प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगेगा, विच इज ऑलवेज सेल प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस -1 × 100। SP is sell price, CP is cost price -1 × 100. You can use that. इसके बाद ये आ गया था, जल्दी करो। क्वेश्चन 3 तो ठीक है। सर हम्म। सर क्वेश्चन 4 में जब हम लोग कॉस्ट प्राइस लेंगे तो हम लोग 60 + 65 लेंगे उसको। नहीं नहीं, पहले तुम वो निकालो ना, so that by selling the mixture at ₹68.2 per kg may gain 10%। कॉस्ट प्राइस तुम्हें लेना है मिक्सचर का, XY के डम में आएगा वो, और सेल प्राइस उसने ऑलरेडी दे रखा है 68.20 इन टर्म्स ऑफ X and Y। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। थर्ड हो चुका है। तुम कर सकते, तुम्हारे पास कॉमर्स है ना, तुम लोग, तुम्हें मालूम है, कर लो, बाकी लोग हाँ, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। कितना लिखा तुमने, ये हो गया? ये लिखो जल्दी से। थर्ड हो गया, निव्या। The cost of type 1 rice 15 rupees per kg, type 2 rice is this, if both are mixed in the ratio 2:3, then the price per kg। ये तो सिंपल था, है ना? क्वेश्चन 3 सभी का हो गया। ऑल राइट। अनन्या, अनन्या, यस सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो सपोज यू मिक्सिंग टू वेराइटीज ऑफ राइस, इसका मैं X kg ले लेता हूँ, उसका आई टेक Y kg। द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ टी इज 60 and the second one is 65 per kg। So what will be the total cost? 60x plus 65y. Total weight will be x plus y kg. So this will become the CP. This is the CP of the mixture, cost price of the mixture. Whereas you've been given sell price, कितना दे रखा है वो? 68.2। It has been given to you 68.2। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लो। गेन परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंट मैंने बताया था, it is always SP by CP -1 × 100। So you can use this. So this is 10%। 100 को नीचे ले आओ, on the left side। SP कितना है? SP हमें दे रखा है 68.2। CP we have already found, 60x plus 65y divided by x plus y -1। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो। वे यूजिंग द प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज का फॉर्मूला, विच इज दिस। SP is sell price, CP is cost price। कौन सा क्वेश्चन है चीजा? हम्म। हाँ।
हाँ, विच इज फाइन। ऐसा नहीं आ रहा है। हाँ, तो पहले यू कैन फाइंड सीपी फ्रॉम हियर देन इक्वेट विद दैट, वो भी कर सकते हो। सी फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड सीपी एंड देन सब्स्टिट्यूट ओवर देयर, वो भी हो सकता है। अगर तुम्हें कॉम्प्लिकेशन से बचना है ना, तो गेन परसेंट दे रखा है 10, एसपी हमें दे रखा है 68.2, सीपी यहां से फाइंड कर लो। वी कैन डू दिस ऑल्सो। ठीक है। तो 1 is equal to 682 by CP -10। 11 is equal to 682 by CP। CP कितना आ जाएगा? 682 by 11, 62 रुपीज, ऐसे कर लो। तो यू कैन फाइंड सीपी। वंस यू गेट सीपी, यहाँ पे इक्वेट कर दो। मतलब गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले से तुम सीपी निकाल के उसमें डाल दो, एंड दिस सीपी इज दिस मच, उसको इक्वेट कर दो। तो 62 is equal to 60x plus 65y by x plus y। So 62x plus 62y is equal to 60x plus 65y। कितना हो जाएगा? 2x is equal to 3y। यहाँ पे आंसर आने के बाद ही प्रोपोर्शन के बाद उल्टा हो जाता है। आंसर इज 3:2। 3:2 आंसर है इसका। ठीक है। अथर्व, तुम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 में हमने पहले गेन परसेंट से सीपी निकाल लिया। क्वेश्चन 5 करो। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 4 श्रीजा, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, समझा करो क्या हो रहा है उसमें। 5 हो गया? कहाँ हुआ है अभी? मैंने क्वेश्चन रीड किया है, क्या समझ में आ रहा है श्रीजा? नहीं, कॉपी नहीं करना, समझना भी तो है साथ साथ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो तो समझो पहले एक बार, उसको पढ़ो एक बार पहले। सिर्फ आंसर कॉपी थोड़ी करना है, समझना भी है उसको। क्वेश्चन को समझना भी तो होता है। हम्म। आ जाएगा। करो। हाँ, 2 रेशो ले लो। हाँ, सब कुछ क्वेश्चन में है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। बहुत, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। वाटर मिक्स थोड़ी कर रहे हैं फिफ्थ में। अच्छा, वाटर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मिल्क का तुम प्राइस ले लो, एक्स एक्स रुपीज पर लीटर। क्वांटिटी वाई ले लो, तो टोटल कॉस्ट x × y हो जाएगा। वाई लीटर ऑफ वाटर ले लो। या तुम 1 रुपी ले लो, 1 रुपी पर लीटर मिल्क, यू कैन स्टार्ट लाइक दैट ऑल्सो। कौन सा कर रही हो तुम? पुश योर सेल्फ, दिमाग पर जोर डालो। सर इस फॉर्मूला से तो नहीं होगा ना, बिकॉज इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा है। कहाँ दे रखा है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस? तो तो उसमें तूने, जब तुमने पानी मिक्स कर दिया, पानी तो कॉस्ट करता है 0। हाँ।
हमने थोड़ी बोला बिस्लरी का पानी मिलाना, नाली का पानी मिला दो। हम्म। ठीक है, जो लोग करते हैं आजकल। तो वाटर द कॉस्ट जीरो कर रहा है तुम्हें। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने सपोज 1 लीटर मिल्क लिया, उसका कॉस्ट है 30 रुपए। उसमें तुमने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो अब 2 लीटर हो गया मिक्सचर। 2 लीटर का कॉस्ट कितना हो गया? 30 रुपीज ओनली। 1 लीटर का जब 30 रुपीज था मिल्क का, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। नाउ यू हैव 2 लीटर ऑफ मिक्सचर विच इज कॉस्टिंग यू 30 रुपीज ओनली। बात समझ में आ गई? तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बढ़ गया ना। ले लो, वेरिएबल सब कट जाएंगे। हाँ ले लो। नहीं तो बेस्ट तरीका होता है कि टेक द प्योर मिल्क का कॉस्ट 1 रुपी पर लीटर, आज से 50 साल पहले। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो X लीटर एक्स भी ले सकते हो, तब भी आंसर आएगा। वेरिएबल से मत घबराओ, क्योंकि जब तुम CP/SP करोगे तो वेरिएबल कट जाते हैं वैसी रेशो में। ट्राई इट योर सेल्फ। एक बार गलत होता है कोई बात नहीं, फिर दोबारा ट्राई करो, पानी पी लो, फिर दोबारा ट्राई करो। क्वेश्चन करते रहना है। सपोज यू हैव मिल्क का कॉस्ट, तो मैं वेरिएबल लेता हूँ। 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट यू रुपीज से एक्स। मान लो तुमने Y लीटर ऑफ मिल्क ले लिया, ठीक है, और Z लीटर ऑफ वाटर ले लिया। तो वाटर का कॉस्ट तो जीरो ही हो गया, और मिल्क का कॉस्ट कितना होगा? X × Y। अब इसके बाद हिंट नहीं दे रहा मैं, खुद से करो अब। भाई कॉस्ट तो जीरो हुआ, कितना ही तुम पानी मिला दो तुम्हें तो कॉस्ट तो वही कर रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? तो टोटल कॉस्ट आ गया XY + 0। ठीक है। हाँ। और वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया एक्स प्लस, नहीं, वॉल्यूम हो गया Y + Z। ये आ गया तुम्हारा वॉल्यूम। अब मुझे ये बात बताओ सब लोग कि भाई, अगर 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट एक्स है, तो जो तुम्हें मिक्सचर मिल रहा है उसका कॉस्ट कितना हुआ? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्योर मिल्क? कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर कितना हुआ? यहीं पे तुम्हें सोचना है थोड़ा सा। ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, इस मिक्सचर को तुम कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हो। कॉस्ट प्राइस क्या था तुम्हारा? ₹X पर लीटर। कुछ हुआ? हाँ, अब तुम्हें SP और CP बताना मुझे क्या होगा। इट सेज दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, तो तुम्हारा कॉस्ट कितना है? तुम्हारा कॉस्ट है ₹X, है ना? कॉस्ट और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? दो 2 लीटर का, सॉरी नॉट 2 लीटर, हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है? Y + Z है ना। हमने Y लीटर मिल्क लिया था,
और z लीटर वाटर लिया था, तो y प्लस जेड इज द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का कॉस्ट कितना पड़ रहा है तुम्हें, इसलिए मैं 1 लीटर वो लेना चाह रहा था। टोटल y प्लस जेड का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, x इंटू वाई पड़ रहा है ना तुम्हें। सो y प्लस जेड का कॉस्ट है x इंटू वाई रुपीज। तो 1 लीटर का कॉस्ट कितना पड़ेगा, y प्लस जेड डिवाइड बाय एक्स वाई, दिस इज द 1 लीटर का कॉस्ट। हाँ 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 राइट। सेलिंग प्राइस तुम्हारा है ये x, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था मिल्क का, x रुपीज पर लीटर, उस पे बेच रहे हो ना। हाँ, तो दिस इज योर एसपी नाउ। तो खुद से दिमाग लगाओ ना, मेरा इस्तेमाल करके मेरा क्यों कम कर रहे हो तुम। मुझे आंसर वहां एग्जाम नहीं देना है। तो अब एसपी तो वो है, लेकिन सीपी तुम्हारा ये होगा, तुमने पानी मिक्स कर दिया ना, तुमने वाई लीटर ऑफ मिल्क में जेड लीटर ऑफ पानी मिला दिया, तो टोटल वॉल्यूम हो गया वाई प्लस जेड। ऐसे समझो, 1 लीटर तुम्हारे पास मिल्क था, उसमें 1 लीटर तुमने पानी मिला दिया, इसका कॉस्ट रुपीज एक्स था, इसका जीरो था, तो 2 लीटर मिक्सचर तुम्हें कॉस्ट कर रहा है एक्स प्लस जीरो। तो 1 लीटर क्या कॉस्ट करेगा, x/2। वही किया है मैंने यहाँ पे। तो एक्स रुपीज पर लीटर था, वाई लीटर मिल्क लिया मैंने, तो टोटल कॉस्ट आ गया XY। XY इज द कॉस्ट ऑफ y प्लस जेड मिक्सचर। तो 1 लीटर ऑफ मिक्सचर विल कॉस्ट यू XY डिवाइड बाई वाई प्लस जेड। तो मिक्सचर का कॉस्ट ये है, सेलिंग प्राइस तुम्हारा ये है। अब तुम प्रॉफिट परसेंटेज लगा दो, आंसर आ जाए कितना दे रहा है गेन परसेंटेज, 16, 2/3। एसपी कितना है, एक्स, बिकॉज ये सेलिंग एट अ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट और एसपी हमेशा 1 लीटर का माना जाता है, ठीक है। जो 1 लीटर का प्राइस है दैट इज द, ये आ गया 16 2/3, ये था ना गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज कितना हो गया, 48 प्लस 2 50/3 हो गया ये। 100 नीचे ले आओ, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, लो कर लो बात, ये तो कट ही गया। ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तुम लोग अन्य से घबरा रहे थे ना एक्स से, वो कट गया। तो यहाँ इसी क्वेश्चन को हम 1 लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट को 1 रुपी लेके भी कर सकते हैं, उससे तुम्हारा ना क्वेश्चन इजी हो जाता है सॉल्व करना। पहले एक बार इससे कर लो, फिर वैसे भी करेंगे। आगे इसका, हाँ, अब इसमें डाल दो उसको। कितना आ रहा है सॉल्व करके ये? 1/6 प्लस 1। अच्छा, इसको 1 क्यों करना है, 1/6 इज इक्वल टू वाई बाय वाई 1 हो गया, वाई बाय जेड, जेड बाय वाई -1, -1 प्लस 1 कट जाएगा। जेड क्या लिया था मैंने, वाटर। किसका प्रोपोर्शन पूछा है उसने, वाटर टू मिल्क, 1:6 आंसर है कोई। Now for the same question, I'll use a little easier method this time. We'll take 1 liter of cost of 1 liter of milk as 1 rupee. हाँ, उसका पहले आता है, वरना जहां तुम्हें +1 मिलना चाहिए ना, वहां -1 हो जाएगा। देखो ये लिख लिया सब लोगों ने, हो गया सबका, लिख लिया ये। आन्या, अथर्व लिख लिया। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट मेथड से कर रहा हूँ। आई टेक कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क एज 1 रुपी। कुछ भी ले सकते हो, कॉस्ट से क्या फर्क पड़ता है। अब हमने वाई लीटर मिल्क खरीदा, तो वाई लीटर मिल्क कितना कॉस्ट करेगा हमें, वाई रुपीज कॉस्ट करेगा। तो कॉस्ट ऑफ वाई लीटर मिल्क इज 10। अब उस वाई लीटर मिल्क में हमने जेड लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया,
टोटल वॉल्यूम हो गया मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड लीटर। इसको मैं x ले लेता हूँ। हमने इसमें x लीटर ऑफ पानी मिला दिया, तो टोटल वॉल्यूम हो गया x प्लस वाई लीटर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हमारे पास मिल्क था, उसका कॉस्ट था 1 रुपी पर लीटर। हमने वाई लीटर मिल्क ले लिया, कॉस्ट होगी वाई रुपीज। हमने 0 रुपी कॉस्ट का वाटर मिला दिया, टोटल वॉल्यूम इतना आ गया। अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ मिल्क हो गया x प्लस वाई, है ना? वाई लीटर मिल्क है, x लीटर वाटर है। इसमें कोई डाउट है किसी को? टोटल वॉल्यूम इतना हो गया। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? वाटर तो कुछ कॉस्ट करता ही नहीं है, वाई प्लस जीरो। तो टोटल कॉस्ट हो गया वाई प्लस जीरो। यहाँ बात समझ में आ गई? तो x प्लस वाई लीटर ऑफ मिल्क है, मिक्सचर है, उसकी कॉस्ट वाई रुपीज है। तो पर लीटर कॉस्ट क्या हो गई? पर लीटर कॉस्ट कितनी आ गई? y डिवाइड बाय x प्लस वाई। कॉस्ट डिवाइड बाय x प्लस वाई, कॉस्ट बाय वॉल्यूम, ये उसकी कॉस्ट है। अब तो कॉस्ट तो कम हो गई ना, मिक्सचर हो गया ना, पानी मिला दिया तुमने। अब सेल प्राइस क्या है तुम्हारा? पर लीटर कॉस्ट होती है हमेशा रुपीज पर लीटर, लीटर पर रुपीज नहीं होता। अकाउंट्स है ना तुम्हारे पास? लुटा दोगे तुम तो, डूबिया। हाँ, डू लुट चलो ठीक है, हो जाएगा वो भी। तो 1 लीटर विल कॉस्ट यू वाई ओवर एक्स प्लस वाई रुपीज। तो ये दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस क्या है? जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो सेल प्राइस, ये एसपी हो जाएगा। 1 लीटर का 1 रुपया, ठीक है? तो 1 लीटर का 1 रुपया, अब तुम गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दो। तो गेन परसेंटेज 16 2/3। एस पी 1 रुपी था, और ये वाई था हमारा 10, वाई ओवर एक्स प्लस वाई -1 × 100। सॉल्व करके इजीली आंसर आ जाता है। वही इक्वेशन बन के देखा जाए तो जो इनिशियल कॉस्ट था तुम्हारा x रुपीज और 1 रुपी, फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे क्वेश्चन में यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद 1 रुपी कॉस्ट। हाँ, एक वेरिएबल कम हो गया। कौन से क्वेश्चन थे ये? 5? इसके रिमेनिंग क्वेश्चन तुम्हें घर पे भी ट्राई करने हैं ना। नेक्स्ट वीक क्लास होगी। अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर बहुत ज्यादा एस्केलेटरी लैडर पे ज्यादा नहीं जाता, उन्होंने बहुत ट्राई किया, ड्रोन ने, उन्हें मिसाइल, पाकिस्तान ने, हाँ 15 सिटी। उसके बाद किया ना रिटेलिएटरी, दे स्टार्टेड। हमने तो बंद कर दिया था उसके बाद, देन दे स्टार्टेड। तो उनको हाँ, यस, हाँ हाँ, वो तो दे बेसिकली किलिंग इनोसेंट सिविलियंस, उनके बस का और कुछ हुआ ही नहीं। तो बी सेफ, एंडिंग द क्लास। और रिमेनिंग क्वेश्चन करना अगली क्लास में, आई टेक डाउट्स ऑफ दिस, ठीक है? राइट, लिख लो ये। शीजा, तुम इसका सॉल्यूशन लिखो जल्दी से। एंडिंग द क्लास नाउ। आशना, लिख लिया? Yes, sir. एंड कर दूं? Yes, sir.